بسم اللہ الرحمن الرحیم حی لا یموت قیوم ولا ینام خالق بلا حاجت رازق بلا مونت ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حی لا یموت قیوم لا ینام خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤونہ ممیت بلا مخافہ باعث بلا مشقہ. حی لا یموت. حیٌ کے ساتھ ذات باری عز اسمہ کے لیے صفت حیات کا اثبات کیا. صفت حیات صفت ازلیہ ہے. لا عینہ تعالی ولا غیرہ تعالی. نہ اس ذات کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے. غیر متعلق کا بھی شے ہے. ذہن میں رکھنا. صفات باری عز اسمہ کی تقسیم کی جاتی ہے اس انداز میں کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، ذات تعلق اور غیر ذات تعلق. ٹھیک ہے. صفت حیات صفت غیر ذات تعلق ہے. صفت علم کا معلومات سے تعلق ہے، سمع کا مسموعات سے، بصر کا مبصرات سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صفات ذات تعلق ہے. صفت حیات غیر ذات تعلق ہے. صفت ازلیہ نہ ذات باری عز اسمہ کا عین نہ غیر، صفت غیر ذات تعلق. بات سمجھ رہے ہو؟ جی. ذہن میں رکھیں یہ تمام تر صفات کی شرط عقلی ہے. حیات، صفت علم، صفت سمع، صفت بصر، صفت قدرت، صفت ارادہ، صفت کلام، ان تمام صفات کی شرط عقلی ہے. اور اس کی شرط عقلی وجود ہے. سادہ لفظوں میں سمجھو کہ کوئی شے موجود ہوگی تو ہے ہی ہوگی نا. ہے ہی ہوگی تو اس کے پاس علم بھی ہوگا، سمع بھی ہوگی، بصر بھی ہوگی، قدرت بھی ہوگی، ارادہ بھی ہوگا. یہ مطلب ہے شرط عقلی. بات سمجھے؟ تو صفت حیات صفات باقی صفات کے لیے شرط عقلی ہے. علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام سب کے لیے شرط عقلی ہے. اور اس کے لیے صفت حیات کے لیے شرط عقلی کیا ہے؟ صفت حیات کے لیے شرط عقلی وجود ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوگی صفت، یہ تو ہوگی حیات کی وضاحت. دلیل کیا ہے کہ اس کے لیے صفت حیات ثابت ہے؟ ذہن میں رکھنا اس کی دلیل نقلی بھی ہے، عقلی بھی ہے. الحی القیوم، حی قیوم یہ کلام باری عز اسمہ میں بھی موجود ہے. یہ دلیل نقلی ہے. اور دلیل عقلی بھی سمجھو. یہ عالم بغیر صانع کے صنع کے، بغیر بنانے والے کے بنانے کے عالم وجود میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. یہ عالم کہتے اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والے کے لیے قدرت اور ارادہ اور علم یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. غور کرنا، علم، قدرت، ارادہ اس کا موصوف غیر حی کو قرار دینا کسی احمق کا کام، بے عقل کا کام ہو سکتا ہے. علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، جب یہ ساری چیزیں ہیں تو حیات نہیں ہے. اگر حیات نہیں ہے تو یہ چیزیں کیسی ہیں؟ بلا حیات علیم ہے، بلا حیات سمیع ہے، بلا حیات متکلم ہے، بلا حیات بصیر ہے، بلا حیات مرید ہے، بلا حیات قدیر ہے. سمجھے بات کو؟ اس لیے آپ کو کہا یہ ان صفات کی شرط عقلی ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی یہ عقلی دلیل دے رہا ہوں. یہ عالم اپنے صانع کے وجود کی دلیل، اور صانع بغیر علم کے، بغیر قدرت کے، بغیر ارادہ کے اس سے صنع کا صدور نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، مرید بھی ہے. اور یہ صفات بغیر حیات کے نہیں ہو سکتی.
लाजमी तौर पे वो हई भी है। जी समझे बात को? जी। तो लिहाजा अकल और नकल दोनों कहती हैं कि वो ज़ाते बारी अज़्ज़ा इस्मुहु हई है। जी बात समझे नहीं समझे? जी तवज्जो है? जी जी ये ज़हन में रखना, उसकी हयात में और बाकी जिंदों की हयात में फ़र्क है। उसकी हयात ज़ात का गैर नहीं है, बाकी तमाम अहिया की मखलूक़ात में से उनकी हयात उनकी ज़ात का गैर है। जी तवज्जो है? जी। इसलिए उन पे तरयान मौत भी है, उन पे तरयान मौत भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जी समझे बात को? और उसकी जो हयात है वो उसकी ज़ात का गैर नहीं है, इसलिए फरमाया ला यमूत। जी 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 हय्युन ला यमूत। जी बाकी सब की हयात ज़ात का गैर, वो हय्युन बेहयातिन ही गैरुहु। जी जी, जी। मखलूक़ात के हिसाब से कह रहा हूँ जी कि वो हय्युन बेहयातिन ही गैरुहु, वो ज़िंदा है उस ज़िंदगी के साथ जो उसकी ज़ात का गैर है। ये मखलूक के लिहाज से, लिहाजा जब ज़ात का गैर है तो छोड़ के जा सकती है, छोड़ के हयात चली गई, ज़ात मुर्दा हो गई। जी यहाँ पर जो हयात है वो ज़ात का गैर नहीं है, ला एन ला गैर है, जी वो ज़ात का गैर नहीं है। इसलिए ज़हन में रखें कि अब ये ज़ात को छोड़ नहीं सकती। इससे कहा हय्युन ला यमूत। जी ये फ़र्क है उसके हयात में बाकियों की हयात में। जी। और हकीकत में हयात उसी की है, बाकियों को हयात तो उसने दी है। जी उसकी हयात अज़ली है, बाकी किसी की हयात अज़ली नहीं है, क्योंकि कोई खुद अज़ली नहीं है। जी उसकी हयात अबदी है, बाकी किसी की हयात अबदी नहीं है। जी मौत आनी है। तो बात समझ रहे हो जी, नहीं? जी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत खुद कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है। बात समझो नहीं जी, समझी? जी। ठीक हो गया, माना करें। जिंदा है जिंदा है। जिसे मौत न आए। जिसे मौत ना आए। समझो बात को? जी। ज़हन में रखी, मौत न आने की दलील क्या है? मौत न आने की दलील नकली तो कुरान अज़ीम में मौजूद है, ला यमूत। जी जी अकली दलील भी है, जब उसकी हयात अज़ली है। ज़हन में रखना, मा सबता अज़लियतुहु इस्तहाला अलैहिल अदम, जिसकी अज़लियत साबित हो उसका अदम मुहाल है, जी उस पर अदम का तरयान नहीं हो सकता। जिसकी अज़लियत साबित वो अबदी भी होगा। बात समझे? जी जी और अभी जो गुफ्तगू की है, ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहु, ज़ात वाला अज़लिया, इल्म अज़ली, तो इल्म की तो शर्त अकली हयात है, तो हयात भी अज़ली, जी हयात अज़ली है, इल्म अज़ली, समा अज़ली, बसर अज़ली, कलाम अज़ली, कुदरत अज़लिया, इरादा अज़लिया, तो इनकी शर्त अकली है। हयात तो हयात अज़ली है, जिसकी अज़लियत साबित, उस पर तरयान अदम मुहाल। जी तो जब तरयान अदम मुहाल तो वो अबदी भी है। जी जी समझे बात को? जी। हय्युन ला यमूत। बाकी हर हई मरेगा, मरता है, लेकिन वो उसकी हयात है, वो हई है, ला यमूत, जी कभी ना मरे। जी इतनी बात समझे नहीं? जी। समझे? ठीक हो गया। उसके बाद कहा क़य्यूम ला यनाम। क़य्यूम, क़य्यूम के एक माना हाफिज़ की भी है, निगाहबान के। जी एक माना है कि अल-क़ाइम बिज़ातिही वल मुक़ीम लिग़ैरिही, जी खुद मौजूद हो, कायम हो, जी और दूसरे को खड़ा करने वाला हो, दूसरे को बाकी रखने वाला हो, जी जी तदबीर के साथ और तख्लीक के साथ, इल्म के साथ, बात समझे जी। नहीं? हिफाजत के साथ, जी तो वो क़य्यूम है। वो किसी का मोहताज नहीं है अपने क़याम में, अपनी ज़ात में वो किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी कायनात, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला, आसमानों और ज़मीनों को सरकने से रोकने वाला वो है, बेशक अपनी जगह छोड़ने से, ज़वाल से रोकने वाला वो है। जी समझे बात को? जी। ये है क़य्यूम। जी जी समझे बात? जी, ये है जी। क़य्यूम। और क़य्यूम ये सिफ़त बारी अज़्ज़ा इस्मुहु कुरान अज़ीम में भी मौजूद है। जी गौर करना, जब उसने सारी मखलूक़ात को संभाला हुआ है, युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला, सरकने से रोक के रखा हुआ है, ज़वाल से बचा के रखा हुआ है, तो अगर बफ़र्ज़ गलत व बफ़र्ज़ मुहाल
नींद आ जाए, नींद आ जाए जी तो खिसक गया ना सारा मामला। जी 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 तू गाड़ी चला रहा है, आंख लग गई, गई खड्डे में। जी जी जी। अगर माज़अल्लाह वहां पर तरियान नौम के इम्कान की बात की जाए तो सारा जहान फना हो जाए। इसलिए फरमाया ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जी ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न नींद आए न ऊँग आए। तो इस जगह कय्यूम कायम बेजात ही मुकीम लगैर ही है। जब मुकीम लगैर ही है कहा ला यनाम, सोता नहीं है, वहाँ पर नींद मुहाल है। ये मखलूक़ात की सिफत है, गफलत है। नौम के इस्तिरखाए मफासिल है। जी जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाला इसे मुनज़्ज़ह मुवर्रा आली बरतर व बाला है। जी इसलिए ला यनाम, कोई बात समझे हो नहीं? जी, जी। माना करें जिंदा जिंदा जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, खुद अज खुद कायम है, खुद कायम, बाकी सबको कायम रखने वाला, बाकी सबको कायम जिसे रखने वाला, नींद न आए। जिसे नींद ना आए। तो खालिक भी वही है, ये ज़हन में रखना। खालिक, राज़िक़, मुमीत, बाइथ, ये सिफ़ात अफ़आल का बयान फरमा रहे हैं। जी सिफ़ात अफ़आल। इसके मज़ीद आगे जो तफसील है, अशअरियों और अशआरियों और मातुरीदियों के बीच कुछ इख्तिलाफ है, उसका बयान आगे चल के इंशाअल्लाह आ रहा है। यहाँ पर देखिए कहा खालिक है, राज़िक़ है, मुमीत है, बाइस है, जी। 4 बातें जिक्र की हैं। जी जी खालिक है, बनाने वाला बना दिया है, बन गए हैं। अब बन गए हैं तो रिस्क होगा, तो बका है इनकी। जी जी राज़िक़ है, रिस्क दे रहा है। जी अब आखिर इनका इख्तितामिया किस पे होगा? मौत का, मौत भी हुई देने वाला मुमीत। बेश जी जी मौत दे दी। अब कल को अपने दरबार में बुलाएगा बाइस। ये चारों मराहिल बयान किए, पहले बनाया, फिर रिस्क दिया, फिर मारा, फिर उठाया। जी नहीं समझे बात? जी, जी। ये चारों काम ये नहीं, इंसान की ज़िंदगी की इब्तिदा, बका, इंतहा और उखरवी ज़िंदगी की इब्तिदा सब उसी की जानिब से है, उसी के करने से है। मेरी बात समझो नहीं? जी, जी ठीक हो गया। जब ये बात आपके जहन में आ गई तो अब ये भी जहन में रखना, उसने मखलूक को जो बनाया किसी ज़रूरत के लिए नहीं बनाया। मखलूक को बनाया किसी हाजत के लिए नहीं बनाया। आपने गाड़ी ली है, क्यों जी? पैदल जा नहीं सकता, इसलिए गाड़ी ली। आपने चीज़ की ख़रीदारी की है हाजत के लिए। आपका जो काम है वो मुअल्लन बिलगर्ज़ है, किसी हाजत और मकसद के लिए करते हो। का खालिकुम बिला हाजतिन, बनाने वाला वो है लेकिन किसी हाजत के लिए नहीं बनाया। ठीक है जी। फिर रिस्क दिया तो रिस्क देने में लखू खा करोड़ हा करोड़, अरब हा अरब, खरब हा खरब खलाइक। और जहन में रखना, तुम्हारे बदन के एक एक सेल और एक एक खुलियों को खुराक की ज़रूरत होती है। जी हर एक एक बदन के एक एक सेल को खुराक वो देता है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बंदा एक है, खरब हा खरब सेल्स तुम्हारी एक बंदे की बॉडी में है। कैसी? ये तो बड़ी मशक्क़त है, लेकिन वो राज़िक़ बिला मोमना है, उसको कोई मशक्क़त नहीं है पूरी कायनात को रिस्क देने में। अब उसके बाद मरहला है मौत का। मारने वाला कौन? कहा रब। लेकिन ज़हन में रखना, मारने वाला है उसको कोई खौफ नहीं है। खौफ की 2 तौजीहें। एक ये होता है कि कभी किसी को मारना इसलिए पड़ता है कि वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इतना ख़तरनाक हो जाता है कि आपको डर लगने लग जाता है कि अगर ये बाकी रहा तो मुझे मार डालेगा, तो आप इसलिए उसको मार देते हैं कि आपको डर लग रहा होता है उससे। जी 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 तो कहा मुमीत बिला मखाफतिन, उसका किसी को मौत देना किसी खौफ की वजह से नहीं है। समझे बात को? जी। एक बिला मखाफा की ये तौजीह है। एक बिला मखाफा की तौजीह ये है कि सबको मार दिया, अब तन्हा है, वहशत है, तन्हाई का खौफ है। कहा नहीं, मुमीत बिला मखाफा, सबको सारे मर जाएंगे। फिर फरमाएगा लेमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए आज बादशाही है? तो कौन जवाब दे? कोई हो तो जवाब दे। खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज बादशाही अल्लाह वाहिद क़हार के लिए। समझी बात को? जी। तो मौत देने वाला है और मौत दे के डर नहीं है कि मैं तन्हा रह जाऊंगा। बात समझे नहीं? जी, जी। ये बिला मखाफा की 2 तकरीरें की। जी। एक का मतलब ये हुआ कि मारा इसलिए कि डर रहा था। कहा नहीं,
उसने जिसको मारा उससे डर नहीं था, बगैर डर के उसको मारा, जी। अपनी हिकमत है उसकी। जी दूसरे के मारने के बाद खुद तन्हाई का डर का ये भी नहीं, ठीक है। जी अब था उठाना, दोबारा उठाना, जी दोबारा उनको जिंदा करना, उसमें मशक्क़त का, उसमें भी मशक्क़त नहीं। आप गौर करें, सारे साइंसदान मिल जाएं, सारे हुक्मा, फलसफा, अक्लमंद, दानिश्वर मिल जाएं, उनको इंसान में और मट्टी के अंदर, इंसान मट्टी से बना, जी मट्टी में बशरियत के माना नहीं मिल सकते। पानी कर ले, पानी के अंदर बशरियत के माना नहीं मिल सकते। बगैर मट्टी के अंदर बशरियत के माना के बगैर बशर बना दिए, पानी के अंदर बशरियत के माना के बगैर, बशरियत के असर के बगैर बशर बना दिया। तो जब बगैर असर के बगैर माना के मट्टी से बशर बना दिए, पानी से बशर बना दिया, तो फिर गौर करे, तेरे बदन की जो मट्टी है उससे तुझे बनाना तो आसान है। जिसने फरमाया बाबू आहवान वाली, उसके यहाँ तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हें समझाने के लिए फरमाया जा रहा है। जी बात समझो नहीं समझो? जी। तो जब उस मट्टी में, मट्टी की तेरे साथ कोई मुनासबत नहीं थी, तुझे बना दिया। जी पानी के अंदर तेरे माना नहीं थे, बना दिया। अब तेरे बदन की मट्टी, जब तू, तेरा बदन जब मट्टी बन गया, दोबारा उससे तेरा बदन बनाना, इसमें कौन सी दुश्वारी? जब कुछ भी नहीं था तो जब बना दिए, जब तेरे बदन ही की मट्टी है तो उससे तुझे बनाना तो और साल होना चाहिए जी हमारे हिसाब से। उसके यहाँ जो है सारी चीज़ें बराबर हैं। बात समझो जी, जी। तो मैंने आपको बताया कि मरहले 4, एक मरहला पहली तख्लीक का, जी फिर उसकी बका का, फिर मौत का, फिर उखरवी हयात के लिए उठाने का। ये चारों रब के करने से गौर करना। सिफात अफ़ाल का भी बयान हो गया, जी इन चारों मराहिल का भी बयान हो गया। उनके साथ ये भी कहा कि खालिक है लेकिन हाजत के बगैर खालिक है, राज़िक है बिला मशक्क़त राज़िक है, जी। मुमीत है बिला मखाफ़ा मुमीत है, बाइस है बिला मशक्क़ा बाइस है। जी बात हो गई है। जी इन चारों की दलील क्या है? जिसकी बिला हाजा, बिला मऊना, बिला मखाफ़ा, बिला मशक्का, असल में ज़हन में रखें, ये चारों चीज़ें नक्स हैं। हाजत नक्स है, जी मऊनत नक्स है, खौफ नक्स है, मशक्क़त नक्स है। जब ये नक्स है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाला नक्स से मुनज़्ज़ह है, लिहाजा कोई हाजत नहीं, कोई मशक्क़त नहीं, कोई मखाफ़त नहीं, कोई जी। मऊनत नहीं। जी बात समझे? जी, जी। ठीक हो गया। जी। ये चारों मराहिल और उसके साथ ये दीगर तफसीलात वो बयान करेंगे। जी ठीक है। जी तख्लीक बनाने वाला है, बनाने बगैर वाला है, हाजत के, बगैर हाजत के, रिस्क देने वाला, रिस्क देने बगैर वाला, मऊनत बगैर मऊनत के, के, मारने वाला, बगैर वाला, खौफ के, बगैर खौफ के, उठाने वाला, उठाने बगैर वाला, मशक्क़त बगैर के। मशक्क़त। खालिक हो गया पहली ज़िंदगी की इब्तिदा, जी ठीक है। रिस्क हो गया पहली ज़िंदगी की बका, जी। मुमीत हो गया पहली ज़िंदगी की इंतहा, बाइस हो गया दूसरी ज़िंदगी की इब्तिदा। जी ठीक हो गया। जी